So, hello students. In today's session, we are going to understand a very interesting, trending, and so important topic that is called artificial intelligence. In today's world, we call it as AI. Students, in the journey of management information system, we are in the chapter of decision support system. In that, today we are going to understand this knowledge based expert system called as AI. So before starting this AI concept, we are going to understand very first that what do you mean by knowledge based expert system. तो पुराने दिनों में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम हो रहा था तो उससे पहले जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती थी वो एक किसी सर्च इंजन के ऊपर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए जाना पड़ता था. So there will be no any common platform where you can access each and every information in a single command or a single command or in a single prompt. Nowadays it is happen. So according to Peter Jackson, Robert Bowerman, David Clover and Red Smith, knowledge-based systems are a form of artificial intelligence designed to capture the knowledge of human experts to support decision making. तो स्टूडेंट्स फिर से ये जो वर्ड जिसके लिए हम पिछले कई लेक्चर्स को समझ चुके हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड decision support system to make a good decision, to come to the quality conclusion, to understand the quality outcome of the particular problem. This knowledge based expert system helps us a lot to come to a good and accurate decision making. So students, as in every session, we understand that there are three levels of management, that is top level, middle level and low level management. This information requires to take a good decision in each department of the organization. तो आगे अगर हम थोड़ा सा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को समझे सिंपल तरीके से तो इट रेफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस in machines that are programmed to think, learn and solve problem like humans. तो ये इतनी सिंपल तरीके से हमें समझ में आया है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमन की तरह अपने किसी भी डे टू डे लाइफ के एक्टिविटीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, हमें अच्छे सजेशन दे सकता है, हमें अच्छे प्रॉपर सीक्वेंस के साथ उसके आंसर्स दे सकता है एंड नाउअडेज इट इज अ पार्ट ऑफ आवर डे टू डे ह्यूमन लाइफ. So it is a valued question in the question paper that artificial intelligence is highly important in upcoming days. Right students, तो आगे हम बढ़ते हैं तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको सबको पता है the great example which is to be innovated in the world of artificial intelligence, we call it as ChatGPT. आज कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है, कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय नहीं है या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर ह्यूमन कैटेगरी नहीं है जिसको चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता नहीं है. But in examination, you need to understand how to write a paper in the form of important points. So ChatGPT is one of the topmost and highly important concept of artificial intelligence. तो इसको बीच में हम थोड़ा सा पॉज लेके कैसे चैट जीपीटी काम करता है, क्या क्या फैसिलिटीज हमें चैट जीपीटी में मिलती है, इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे. सो टेकिंग टू मच टाइम आई एम शिफ्ट माय स्क्रीन में इसको मिनिमाइज कर रहा हूं और आपको सीधा मैं चैट जीपीटी किस तरीके से हम लॉगिन कर सकते हैं इसका भी एक प्रैक्टिकल डेमो आपके सामने पे दिखा रहा हूं. सो दिस इज द गूगल स्क्रीन. तो आपको चैट जीपीटी को लॉगिन करना है तो यू कम टू गूगल. नया कोई यूजर है तो वो सीधा टाइप करे चैट जीपीटी, तो आपको गूगल रिसेंट प्रॉम्प्ट में वो दिख जाएगा. एंटर करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हु इज द फाउंडर ऑफ चैट जीपीटी. तो द कंपनी कॉल्ड ओपन एआई एंड माइक्रोसॉफ्ट, ये दो डेवलपर्स ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इनिशियल डेट पे राइट 13th of November 2022
पाइथन लैंग्वेज का यूटिलाइजेशन करके एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन सोर्स इंजन बनाया है, जिसके अलग अलग टाइप के वर्जन है, जीपीटी 40, जीपीटी मिनी, जीपीटी 03। देयर आर टू मेनी सर्च चैट जीपीटी वर्जन आर देयर, और ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जैसे डेटा होता है, इट इज बेस्ड अपॉन क्लाउड कंप्यूटिंग. So taking too much time, I'm directly click on chat GPT, that is open AI. इसके बाद आपको क्लिक करना है chat GPT पे, राइट. जैसे ही आप चैट जीपीटी के ऊपर एंटर करते हो तो आपके सामने ये प्लेटफॉर्म, ये डैशबोर्ड, ये स्क्रीन ओपन होती है, जहां पे आपको पता चलेगा कि दीज आर दी ऑप्शंस. इससे पहले मैंने कुछ काम किया है तो वो आपको विजिबल होता है, एंड दिस इज योर प्रॉम्प्ट, जहां पे यू कैन आस्क एनीथिंग, राइट. तो चैट जीपीटी आपको अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, दैट इज वी कॉल इट एज नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम, राइट. तो मैं एक सिंपल सी कमांड उसको देता हूं कि राइट एन एसे ऑन मून. तो जब ये कमांड मैं जो देता हूं तो विद इन अ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड वो नॉलेज एक्सपर्ट सिस्टम मेरे लिए एक ऐसे राइटिंग का काम कर रहा है, एंड इट इज हाईली हाईली मैजिकल. किस जनरेशन में हम काम कर रहे हैं आपको पता चल गया होगा. दिस इज विच इज हाईली इंपॉर्टेंट. देखो, और ये प्रॉपर तरीके से टेक्स्ट को लिख रहा है, एंड इन ए वेरी सिस्टमैटिक वे वो हमारे क्वेश्चन को समझता है, हमारे प्रॉम्प्ट को समझता है, और हम किस एरिया से, किस रीजन से काम कर रहे हैं, उस लेवल का डेटा, उस क्वालिटी लेवल का डेटा वो हमें प्रोवाइड करता है. स्टूडेंट, आप ये देख के भी चौंक जाएंगे कि अगर मुझे मून का ऐसे तो मिल गया, बट मुझे एक इमेज चाहिए, राइट. तो मैं उसको बोलता हूँ कि एक इमेज बना के दे मुझे मून की. तो जो काम ग्राफिक डिजाइनर इससे पहले करते थे टू ड्रॉ ग्राफिक्स, आज एआई भी वो कर रहा है. सो मैंने वो एक प्रॉम्प्ट दे दिया है उसको, एंड नाउ द स्क्रीन is working on that line, the prompt is working on that line, और वो एक मून का, चंद्रमा का एक इमेज बनाने की कोशिश चैट जीपीटी के मोड में, जिसको हम ओपन एआई कहते हैं. सो यू कैन आस्क एनीथिंग, इट विल टेक सम ऑफ द फ्यू मिनट्स टू एक्चुअली ड्रॉ एन इमेज ऑफ मून. तो इस जनरेशन में स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं. इट विल टेक 1 to 2 minutes, और इट मे बी हैपन कि अगर नेट का स्पीड और सर्वर का स्पीड अच्छे से मैच हो तो विद इन 30-40 सेकेंड द इमेज इज easy to access, downloadable to the user who is asking that particular prompt for a particular question. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट्स. यू कैन शेयर. तो यहाँ पे जिस मेल आईडी से मैंने लॉगिन किया है, आपको मेल आईडी से लॉगिन करना जरूरी होता है. यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं. यहाँ पे वो अपनी चैट जीपीटी का जो कुछ भी आप सर्च कर रहे हो, आपको अगर अपग्रेड प्लान में जाना है तो यू क्लिक ऑन दैट अपग्रेड प्लान. यू वांट दिस चैट जीपीटी इन प्रीमियम वर्जन, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आप चैट जीपीटी प्रीमियम वर्जन में ले सकते हो. कस्टमाइज आपको कुछ करना है तो ये भी आप कर सकते हो. यू वांट टू शेयर समथिंग विच इज हाईली इंपॉर्टेंट. आपने कोई टॉपिक सर्च किया, आपने कोई इंफॉर्मेशन सर्च की, और आपको उसे इमीडिएट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म किसी को शेयर करना है, तो आप यहां से उसको शेयर कर सकते हो. एंड यस, दिस इज द यस दिस इज एन इमेज ऑफ मून. तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, देखो, एक ग्राफिक डिजाइनर का काम भी आज एआई कर रहा है. सो सी स्टूडेंट, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो. आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर डायरेक्टली उसको सेव एज करना है तो सेव एज भी कर सकते हो, नए विंडो में भी ओपन कर सकते हो. सो यू कैन एक्सेस टू मेनी थिंग्स, राइट. तो टेक्स्ट मैंने देख लिया. इमेज को किस तरीके से हम देते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम. कोई एक आईटी का स्टूडेंट से वो लेता है कि राइट 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 अ सी प्रोग्राम, राइट, और of addition of two number. तो जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं उनके लिए भी ये प्रोग्राम लिखना शुरू करता है.
So it is highly important. See student, see the screen like a compiler. जो प्रोग्रामिंग सीखते हैं, राइट, उनको तुरंत समझ में आया होगा कि एक सी प्रोग्रामिंग हैश इंक्लूड stdio.h प्रोग्राम के इंटीजर प्रोग्राम का डिक्लेरेशन हो चुका है, और कैसे वो वर्क करेगा ये भी आपको बता रहा है. सो इतना आसान हो चुका है. बट एज एवरी कॉइन हैज टू साइड, तो एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है. अगर आपको कुछ ऐसी चीजें चाहिए, मान लो कि ये प्रोग्राम मुझे प्रिंट करवाना है और इसका मुझे पीडीएफ करना है, तो मैं कमांड उसको दूंगा, क्रिएट अ पीडीएफ फॉर दिस. तो मैं पीडीएफ के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा हूं, तो जो भी डेटा है उसके ऊपर वो काम करेगा, एनालाइज करेगा, और हमें जिस फॉर्मेट में वो डेटा चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, जो भी चाहिए. सी, here's your PDF file containing the C programming for addition of two numbers. और ये डाउनलोडेबल फाइल जो PDF फॉर्म में मैंने मांगी थी, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये डाउनलोड सेक्शन में जा चुकी है एंड इट इज अवेलेबल. इसको मैं क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ. सी स्टूडेंट, दिस इज द C program of addition of two number in the form of PDF coming from ChatGPT, that is called OpenAI, right? इतनी सारी चीजें हम AI के साथ कर सकते हैं. अगर आपने उसको अलग टाइप में राइट अ टेबल फॉर 10 नंबर्स, ऐसा कोई टेबल फॉर्म में मुझे कुछ करना है, तो मेरे लिए वो टेबल भी ड्रॉ करता है. एंड दिस इज द बिगेस्ट इनोवेशन, जिसके लिए हमें इससे पहले काम करने में बहुत वक्त लगता था, बहुत लोगों की हेल्प लेनी पड़ती थी, बहुत लोगों के ऊपर काम करना पड़ता था, तब जाके वो डेटा विथ मिनिमम एरर्स, अब यहाँ पे तो जीरो एरर्स है बट मिनिमम एरर्स से वो काम होता था. इसके वजह से आज मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो आज एआई की वजह से देयर आर लॉट्स ऑफ सैचुरेशन इन एम्प्लॉयबिलिटी. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ओपन एआई, दैट इज कॉल्ड नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम. पेपर में आप इसको बहुत अच्छे तरीके से विद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के साथ आप लिख सकते हो. एंड दिस इज द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन. अब हम सीधा चलते हैं अपने पावर पॉइंट टेम्पलेट की तरफ. यही वो जो स्क्रीन है जो मैंने आपको बताया थी कि चैट जीपीटी, उसके बाद बहुत सारे जीपीटी आए हैं. पीपीटी के लिए अलग है, एनिमेशन के लिए अलग है, वीडियोस के लिए अलग है, ग्राफिक्स के लिए अलग है. अब बहुत सारी चीजों को इसके ऊपर सर्च कर सकते हो किस काम में आपको इंफॉर्मेशन क्वालिटी मोड पे चाहिए. सी स्टूडेंट, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट, और इसको ही आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि इट अलाउज यूजर टू प्रोवाइड different types of information as per the requirement, right? So this is the best example of chat gpt, right? Then the next one is, जिसको हम अभी, ये एक फोटो आपके सामने जो मैंने लाया है, you can feel the actual reality of any object, and we call it as, it is again an best example of virtual reality, right? जो कि आज के डेट में बहुत ट्रेंडिंग है. आपको कोई घर बांधना है, आप घर का प्लान एक्चुअल में फील कर सकते हो बाय यूजिंग दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस. आप लेनोवो जैसी कंपनी इसमें आ चुकी है, सैमसंग है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड है जो वर्चुअल रियलिटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइट? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूटिलाइजेशन करके आपको एक रियल फील दिया जाता है. इवन देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस इन द वर्चुअल रियलिटी, जहां पे आपको लगे कि आप रियल टाइम में उसको फील कर रहे हो या देख रहे हो. इट इज अगेन एन एक्सपर्ट नॉलेज सिस्टम, जो कि एक बेस्ट एग्जांपल है रोबोटिक्स, राइट? सी दिस इमेज, जहां पे आपने बहुत सारे, एलेक्स का नाम की एक रोबो है जिसको एक नेशनलिटी मिल चुकी है किसी कंट्री की. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस व्हिच इज टू बी नाउ इन अ ट्रेंड. और सबसे बढ़िया जो टॉपिक है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, कॉल्ड रोबोटिक्स. तो रोबोटिक्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन साइंस एंड एक्सपर्ट नॉलेज सिस्टम का यूटिलाइजेशन करके हूबहू जैसे कोई इंसान मेरे साथ हो, बट इट इज लाइक मशीन, तो उसको मशीन लर्निंग को भी हम कहते हैं. दीज आर दी फोटोज. अब ये तो आप सबने देखा ही होगा. तो दिस इज समथिंग
द फ्यूचर ऑफ रोबोटिक्स, जहाँ पे आपको हो सकता है कि जैसे ह्यूमन आर्मी है तो आने वाले दिनों में आपके ह्यूमन आर्मी के साथ दिस रोबोटिक्स विल हेल्प to protect the nation of all the countries, but this is again the part of advanced information knowledge expert system. तो students I hope so कि आपको ये एग्जाम्पल के साथ हर एक चीज समझ में आ रही है, right? And this is the best example of knowledge based expert system जिसको artificial intelligence के साथ हम समझ रहे हैं, right? और कुछ इस तरीके से इस नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम को एक स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्मेट में, डैशबोर्ड फॉर्मेट में, सीक्वेंशियल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन एक्सेस को दिया गया है, राइट? तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं अभी आपको चैट जीपीटी के स्क्रीन पे लेके जा रहा हूं इन अ सेम लाइन, राइट? अब जैसे मैं यहाँ पे अगर जाता हूं तो आप एक बार देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे है यूजर क्यूरी, मतलब आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपने इंटरफेस पे डालिए, इंटरफेस वो सर्च करेगा और उसके नॉलेज बेस से, उससे नॉलेज बेस के सर्वर से, नॉलेज बेस के जो डेटा स्टोरेज है उससे जो क्वालिटी इंफॉर्मेशन है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, रिक्वायर्ड तरीके से आपको वो इंफॉर्मेशन नॉन एक्सपर्ट यूजर, जो कि एक नया बंदा है जो आपके एक्सपर्ट सिस्टम पे अभी अभी आया है और वो कुछ नॉलेजेबल चीजें मांग रहा है, टेकिंग टू मच टाइम, मैं आपको सीधा चैट जीपीटी के ऊपर लेके जा रहा हूं तो यू विल अंडरस्टैंड इट इज इंपॉर्टेंट। और ये है चैट जीपीटी, फिर से आपको सेम स्क्रीन पे जाता हूं, व्हाट कैन आई हेल्प विद, तो दिस इज कॉल्ड स्क्रीन, ये इंटरफेस है और यहाँ पे हम क्यूरी डाल रहे हैं, प्लीज गाइड मी अबाउट हाउ टू यूज चैट जीपीटी। तो इसको हम कहते हैं क्यूरी। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो क्यूरी बैकएंड में जाएगी और वो नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम से आपको डेटा लेके आएगी। यस, एंड दिस इज योर आंसर। तो कैसे आपको यूज करना है वो सारी इंफॉर्मेशन वो सिक्वेंशियली आपको दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, आइडियाज, लर्निंग, प्लानिंग, ट्रांसलेशन, कोडिंग एंड टू मेनी थिंग्स। इतनी सारी चीजें वो आपको दे सकता है। कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं तो आपको बताता है, बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, गिव क्वालिटी कंटेंट्स, बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू टाइप, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल चैट जीपीटी ने हमें बताया है, एंड दिस इज कॉल्ड reply to the query, reply to the prompt. We cannot use the word query right now. अब query के जगह पे prompt ये word बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट में। So this is all about the expert system। अभी हम फिर से अपने पीपीटी पे आ चुके हैं, and this is the standard phenomenon or structure of knowledge based expert system। तो I hope so everyone understand कि कैसे information कहाँ से आती है और किस तरीके से एडवाइस दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ वॉइस और इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज। तो इट इज हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ, राइट? तो किस किस जगहों पे नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम एक कैरेक्टर की तरह, एक प्रॉपर फीचर्स की तरह यूज होता है, कहाँ कहाँ पे वो उसका यूटिलाइजेशन होता है, कहाँ कहाँ पे वो फायदेमंद है, उससे हमें क्या फैसिलिटी मिलती है, क्यों एआई इतना चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू एबिलिटी टू सपोर्ट फॉर डिसीजन। मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन एआई से मिलेगी जो मुझे जरूरी है, अगर वो एक्यूरेट है, क्लियर है और 90-95% उसमें प्रॉम्प्ट एक्यूरेसी है, तो मुझे डिसीजन लेने में बहुत हेल्प होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक उसका ये है कि इंटेलिजेंट बिहेवियर, मिनिमम मिस्टेक्स, मिनिमम गलतियां। तो जो भी आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन का कंटेंट मिल रहा है, वो एकदम हाई क्वालिटी इंटेलिजेंट बिहेवियर के साथ बन रहा है। So this is the again next characteristic, help for conclusion। again it is a part of decision कि मुझे निर्णय लेने में, मुझे कोई डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। फ्लेक्सिबल इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ वो सामने रख रहा है, आपको समझ में आने में दिक्कत हो रही है, नो, इट इज फ्लेक्सिबल टू अ न्यू और नॉन एक्सपर्ट यूजर ऑल्सो, right? So this is the best characteristic of this knowledge based expert system।
And finally, it comes to our ability to deal with certainty. तो एक्चुअल में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अनसर्टिनिटी नहीं है कोई भी चीज की, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो गलत है। तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो भी एआई हमें देता है वो ज्यादा से ज्यादा आपके करंट और रियल टाइम में यूटिलाइज हो, ये उसका एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम, राइट। देन द नेक्स्ट वन इज एक्सपर्ट सिस्टम, राइट। तो कौन कौन से एक्सपर्ट सिस्टम हमें मार्केट में मिलते हैं? So the very important expert system we call it as a aerospace technology. तो कहाँ पे ये इंफॉर्मेशन का टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है? तो बेस्ट एग्जांपल इज नासा। सेकंड इज एयरलाइन इंडस्ट्री, वो सारी चीजें जहां पे इंफॉर्मेशन बहुत एब्सोल्यूट राइट चाहिए, जो भी हवामान है, जो भी नेचुरल कंडीशंस है, उसकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट मिले, वहां पे एक्सपर्ट सिस्टम का बहुत ज्यादा यूज होता है। सो अभी का रिसेंट एग्जांपल अगर हम ले तो सुनीता विलियम्स फ्रॉम इंडिया, राइट, शी इज कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर सैटेलाइट ऑन अ पर्टिकुलर प्लैनेट, वेरी सेफ्टी, very simply. So this is the best example of expert system. तो नासा है, स्पेसएक्स है। तो ये कुछ एग्जांपल्स, एप्लीकेशंस आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री में इसका बहुत यूटिलाइजेशन है। उसके बाद हेल्थ केयर मैनेजमेंट है। मैं अगर आपको बोलूं कि इंडिया में बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं आज एआई की हेल्प लेके मेजर मेजर ऑपरेशंस, जो कि हेल्थ मैनेजमेंट का एक कोर पार्ट होता है, उसमें उसका एप्लीकेशन का यूटिलाइजेशन हो रहा है। डेटा एनालिसिस, प्रॉपर तरीके से हम डेटा को मैनेज कर सके, आपकी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से सिक्योरिटी भी मिल सके, उसके लिए भी एक्सपर्ट सिस्टम बहुत अच्छे से काम करती है। रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, रिगार्डिंग टैक्स प्लानिंग, तो इतने इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है जहां पे एक्सपर्ट सिस्टम का यूटिलाइजेशन किया जाता है। एग्जाम में आप इसमें से कुछ फ्यू नंबर्स तो भी लिखेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है, जो कि ये डे टू डे लाइफ के एग्जांपल है जो आपको जल्दी याद आ सकते हैं, राइट। देन द नेक्स्ट वन कि अलग अलग ऑथर्स ने पेपर में, आपको ऑथर्स के नाम ज्यादा पूछे जाते हैं। अगेन अगेन आई कम टू द सेम डेफिनेशन, बट ये ऑथर के साथ है। जॉर्ज लूगर है, विलियम स्टफील्ड है, उसके बाद हुसैन बिटगोली है। तो उन्होंने भी सेम डेफिनेशन दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस बाय मशीन्स, राइट, स्पेशली इन कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर का यूज करके, इंटरनेट का यूज करके बहुत से जगहों पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूटिलाइजेशन दिखेगा, राइट। और दिस आर द सिस्टम की, या कहां कहां पे वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो लर्निंग में यूज होता है, मशीन प्रॉब्लम में यूज होता है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में यूज होता है, लॉजिक मैनेजमेंट में यूज होता है, लैंग्वेज टूल्स में यूज होता है। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम जो आपको दिखाती है कि टू सॉल्व द प्रॉब्लम दिस एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हाईली यूज। तो ये कुछ है, और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, दीज आर दी लास्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन, जो आपको समझ में आएगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़िया से बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सारी चीजें मिनिमम टाइम में कर सकते हैं। हर जगह पे आपको ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत नहीं लगती है, बार बार आपको टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत आसानी होती है। इंप्रूव्ड इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, मैंने आपको बताया कि बहुत स्पीडली काम होता है। एक सिंपल सा ऐसे मैंने 30 सेकंड में लिखा है, तो बड़े बड़े रिसर्च डिसीजन लेने के लिए मैं एआई के साथ बहुत इजीली एक्सेस कर सकता हूं। मैं क्या, एनीबडी फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम एनी लोकेशन और एनी टाइम। दैट इज वाई द नेक्स्ट पॉइंट इज 24/7 अवेलेबिलिटी, राइट, कि कहीं से भी आप, ऐसा कुछ नहीं है कि एआई ब्रेक ले रहा है, एआई का सोने का टाइमिंग नहीं। यू कैन एक्सेस एआई, मशीन्स को कोई सोने का टाइम नहीं है। आपका तो भी एज ए ह्यूमन, हमारा ब्रेन तो भी कहीं ना कहीं थोड़ा स्टक हो जाता है, थोड़ा सा उसे एक रिलैक्सेशन की जरूरत होती है, बट इन मशीन देयर विल बी नो एनी ब्रेक, राइट। एक प्रॉपर डेटा एनालिसिस करता है, इनसाइट बहुत बढ़िया होते हैं, गलती बहुत कम होती है, राइट। एनहांसमेंट इन हेल्थ केयर, तो मैं आपको बार बार वही बोल रहा हूँ कि देयर आर हेवीली utilization of robotic surgeries and in virtual assistance in the enhancement of healthcare industry, AI is highly used.
Technologies is the next part. Smarter technologies powering innovations like self-driving cars and smart assistants. So Tesla is the best example. With the help of artificial intelligence, without driver cars are to be launched by Tesla. So this is the best benefits of artificial intelligence, right? Without any accident, a proper command with proper speed, with proper utilization, following rules and regulations of traffic, this artificial intelligence based cars are available in the market, right? And that is why the last but not the least best benefit, that is better customer experience. तो जितने भी एआई के अलग अलग चैटबॉट्स है, अलग अलग रिकमेंडेशन जो हम करते हैं, पीपीटी के लिए अलग, ग्राफिक्स के लिए अलग, म्यूजिक के लिए अलग, तो दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज. So students, I hope so you understand this very important topic, which is highly important to towards your examination, that is artificial intelligence. राइट, तो आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, कैसे वो काम करता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में वो उसके बेनिफिट्स होते हैं, ये सब कुछ आज के सेशन में हमने देखा है. और आई होप सो एवरीवन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने बहुत इजी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की आपको कोशिश की है और आपको इससे बिल्कुल मजा आया होगा, ऐसी अपेक्षा करता हूं. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी द नेक्स्ट element of the chapter called MIS. Right, up to that, thank you so much. Thank you.